Let's start. Namaste, people. A very, very warm welcome today to Maitreya platform. Today, I have a person who is a mystic, who is also very much into this material world. Maybe I can say who has balanced the renunciation and rejoicing, or renounce and rejoice very well in today's world. Well, inviting Sambudh ji from Sambudh Pranam. Foundation. Pranam, a very, very warm welcome for Maitreya. Well, today the platform of Maitreya is such that it says, own your story. So I'm very happy that I have a person, I have someone who's gone through a lot of transformations to be where you are today, to tell us your story. Thank you for coming in for Maitreya today. It's my pleasure, Prabhu Smita. Thanks for inviting me in this beautiful show that you are organizing since long time. I'm continuously following, and I'm sure you have invited lots of amazing speakers. And I Mhm. have seen some of your videos and lots of inspirational talks, and even I have shared with Mhm. some of my disciples and Mhm. people. Thank you so much. Appreciating Thank you. Thanks a lot. doing it. Keep up the spirit. Mhm. Uh, Thank you. so, what do you want to know? Yes. Talking about Sambodji. I'm not so used with such interviews, huh? No, So I it's a casual interview. I wouldn't be asking you anything, tough or anything which is contemplating right now. always scared of these interviews and vivas, Mhm. even my school Please days. don't be scared. Yeah, it is like a general talk. Well, you have done a lot of insightful discourses, if I have to say, and your mastery in mechanisms of life. Well, it's been benefiting many of us to explore the subtle dimensions of life. Well, Sambudji's methods of self transformation are direct and powerful, that are backed up by science. Self transformation is the Mahapran Kriya. Well, we would be talking about the Kriya a little later. Also, he signifies the convergence of the spiritual and the material world, a balance of profundity and pragmatism. He can be seen in an attire of a monk sometimes, or sometimes in the highest of clothing. You can see him in flights, or in private jets, as well you can see him in caves or maybe Himalaya. Well, it's a very, very distinct equilibrium that you are following. Also, he has become an admired speaker due to his talks at various important international forums and conferences. Sambudh has been a delegate in UN General Assemblies numerous times. He has traveled half the globe, experiencing and understanding lives and mindsets of different people from all perspectives. Well, due to wisdom and spiritual solutions to major social and personal issues, he's a well known face amongst the biggest influencers and also different celebrities, many celebrities, including sportsmen, politicians, royal families are also blessed with his wisdom. What an introduction, Sambudji. Thank you so much. I'm super honored that you are here today and here with us to share your knowledge. Well, coming back to your story, how did your interest in spirituality begin, and how did it develop, and when did it develop? See, since my school days, Mhm. there was one element of inquisitiveness, Mhm. very inquisitive. And that element, I think, that carved the path, Okay. that always pushed me Mhm. to look at the beyond. Mhm. Whether it's a gadget, I still remember when my dad used to gift me a kind of a piano or, Mhm. some toys or something. Mhm.
I try to understand the mechanism behind it. कि काम कैसे करता है? How does it work? And then slowly, nature जो है, very intrigued about everything, whether it's a snake, snail, a butterfly, plants, very intrigued to understand how is it happening? How is it blooming? How is it flying? How is it moving? So this inquisitive element was the key factor, if I can recall my starting and in my childhood days. And then I think the seed of that, what you say, the enlightenment or the seed of awakening, I always say that the seed is in every one of us. That is so true. I say even the most notorious criminal on this planet has a short possibility to be awakened, to be a Buddha, to be a Krishna. The only thing is that what is needed is a right soil, a right nurturing, right nourishment, right fertilizer, water, the 5 elements, and obviously a right gardener. Very, very well said. So I would say that I am quite blessed. From my parents to my teachers in the school, and everyone who was coming in my life on and off has somehow helped me to grow and blossom in the direction where I am today. So आपने पूछा कि कैसे ये सब शुरू हुआ, तो I am saying again कि seed तो सबके अंदर है, that बीज is in everyone. फिर उसके बाद how things unfold around you, that all depends on your karmas. True. So in the Bharati Darshan, we have this karma definition as 3 karmas: prarabdha, sinchit, and kriyaman. So now when I'm at this position where I can look beyond, when I can see, then I can surely say and see and know very well that it was all because of those past life sanskaras that all have come up and brought me where I am today. So this is the way it has started in this life. And after that, you know, जब संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, when they are very strong, they won't let you to astray. They won't let you to wander here and there. They will keep you focused. Even if you go astray here and there, they will again bring you on the track. So being born in this era, surrounded with so much of technology, internet, and, you know, very normal middle class upbringing in India, friends, schools, everything. I did kind of everything that any boy at my age used to do, and even the same life. Used to speed up the motorcycle and do some of those wheelies, you know, one tire up and one tire on the right, remember, you know, and lots of things. Then the age of 18, when I passed my 12th senior examination, I got a chance to visit a yoga university in Bihar. It's a very famous and a very popular and an amazing place to be in yoga. It's named as Bihar School of Yoga. So I got this opportunity from some other source that, would you like to go there? There will be like 2 months program and all your accommodation and traveling, everything will be taken care of.
Mhm. I was just on the verge because after passing my 12th, I have given the entrance of the engineering exam Mhm. and I was selected. Okay. But the counseling of the engineering exam was after 2 months in the month of August, Okay. July or August. Mhm. So I have this May and June month, and I want to do something in this. Mhm. So May and June, I went to this place, Bihar School of Yoga. So the seed that has sprouted, Mhm. germinated, and probably came out of the ground has now got a right place Correct. where Yes. it can, firm its roots. True. So I think Bihar School of Yoga, Mhm. Swami Niranjanan Saraswati, Mhm. and so divine teachers out there, Yes. Very much. they took hold of me and Mhm. they helped me Mhm. to let those roots firmly gripped with the ground. Mhm. After spending some time there, I 2 3 months I spent there, and then when I was leaving there, I called my parents that uh, I want to be in this journey now. Mhm. I don't want to do engineering. It was a shock to my family, um, Yes. Mhm. but that's why I was saying when destiny has True. already decided where it wants to take you, nobody Mhm. can ever control. Even I was like, what's all is happening? Like, I'm not Correct. born for this thing. I never Mhm. saw myself in this arena. Mhm. Why? Like, I can be a good engineer and earn lots of money. That was, go in United States and do all those things, Mhm. Microsoft and Google or whatever. But Mhm. then, what is this yoga? Why I'm into yoga? There were questions at that time. I don't know Mhm. what is all happening with me. Mhm. But then I just let myself flow. So one, that inquisitive element, as I have highlighted. Mhm. Second, I think I've always let go of myself. I never like try to do this, and I Correct. always let myself free and flow. Mhm. There is some kind of intrinsic trust Correct. for that existence, Yes. that immense trust that I always had and have Mhm. in the existence. Yes. So I actually let myself flow. Mhm. And after Bihar, I reached Rishikesh, Okay. because Rishikesh is also, and it's still they call as the yoga capital Yoga of the world. capital. Yes. True. I was very naive. Okay, Mhm. even the seed was there, it has germinated, whatever, whatever. But Mhm. then still, all the nitty-gritties of yoga, meditation, I'm not Mhm. aware of what's going on. But Mhm. there was some desire, I would say, very Mhm. firmly, desire, a kind of a desperation, a Mhm. very deep inquisitiveness to Mhm. understand that who am I? That what is it all going on? That Raman Maharshi, the only meditation that we tried, we Mhm. that he gave, is Mhm. that just sit down every day, few minutes with yourself, and Mhm. just keep asking this question again and again with you: that Yes. who am I? Who am I? Who am I? That question was throbbing in my veins all the Mhm. time. Mhm. That bloody who am I? I used to Yes. ask this thing to myself. Mhm. That who am I? And I think this it keeps giving me that momentum Mhm. True. on this path. Yes. सो वो कहते हैं ना कहीं वो एक फ्लेम, एक ज्योति Mhm. जल गई थी। हाँ. और इस तरह का जो ये था, कभी इंक्विजिटिवनेस एलिमेंट था, लेट Mhm. इट गो, और सब ये सारे एलिमेंट ने उस ज्योति को हमेशा Mhm. फ्यूल देते रहा, True. तो ज्योति बुझी नहीं। Mhm. और I always say this thing that I'm really very blessed. Now you can call it as my past life sanskaras or whatever, or Yes. the desire of the existence, the wish or the will of the existence, that Mhm. I'm always been blessed Mhm. having great people around me, Yes. great people who have really helped me Mhm.
आई थिंक जो इन बोलते हैं ना पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं. आई मीन हाँ हु इज पॉजिटिव अट्रैक्ट ओनली दैट काइंड ऑफ एनर्जी. I think जी people with you do realize that you're positive, you're motivating, and maybe you are discovering yourself and also help in others' discoveries. Maybe that's why they would want to stay with you. yeah, we can see it from this facet also, but Mhm. um, I let it the answer on the existence because I never try to dig deep in it. But Mhm. this is what I would surely admit, that I Mhm. have always been surrounded with great people Mhm. in all dimensions, whether it is a spiritual journey Mhm. or in a materialistic world. Mhm. Great people, positive energies, Mhm. and they literally helped me. Means I think there are sometimes in the Bharati Darshan we say that जब हम कुछ करते हैं तो नियति Mhm. फिर उस तरह के लोगों को हमारे जीवन में भेजती है, ठीक Correct. है, जो हमारी यात्रा में Mhm. हमें कैटलिस्ट का काम करते हैं, Correct. हमें आगे बढ़ाने आते हैं, हमें, Mhm. वो चाहे रावण के रूप में भी आ सकते हैं और राम के Mhm. रूप में भी आ सकते Mhm. हैं। आप उनको कैसे रिसीव करते हैं? आप रावण से भी Correct. कुछ शिक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं Mhm. और राम से भी आप आशीर्वाद लेके आगे बढ़ सकते हैं। True. तो मैं कहूँगा कि मैं तो सभी से लेके आगे बढ़ा Mhm. और बढ़ता गया और आगे यात्रा चलती गई, Mhm. एंड दिस इज द वे। तो फिर आफ्टर दैट for 3 years I entered in a monastic life. Mhm. uh, so I lived in Pithoragarh Mhm. in Uttarakhand, Okay. Rishikesh. So Mhm. there is this, in Pithoragarh there is a Munshiari glacier. Oh, So wow. Mm. there was this uh, amazing monk Mhm. who took me with him, Mhm. and I used to live with him. And then in Mm. Munshiari, then in Pithoragarh, then in Rishikesh, then in Barkot in Oh, Uttarkashi. okay. So always the traveling the length Mhm. and breadth of the Himalayas, Mm. and learning from different masters, Yes. आपको understanding इस the, जर्नी में कभी कभी did you feel that okay what am I doing, am I discovering myself, should I go back to the practical world, or is that did that confusion happen? Because मुझे कभी कभी होता है कि मैं कॉर्पोरेट में थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट फाइनली आई लिसन टू द योगा कॉलिंग. So till I was, till I established myself, I had always this doubt as to what am I doing. सबको होता है ये जर्नी में, जो आते हैं ना, they feel that okay what am I doing, should I go back and to the practical world. लेकिन आप you have a very good balance of both. I mean to say, like I said earlier, renounce and rejoice. So how do you manage to get the best of both worlds? नहीं बहुत होता था। Hmm. मैंने कहा कि बहुत होता था, अ, और बीच बीच में लगता था कि ये कहाँ आ गए, Correct. हाँ. where I put my foot in. Hmm. बट मैंने कहा बार बार, यही बात मैं कह रहा हूँ और कहता हूँ हमेशा, Hmm. कि अगर आप अपने आप को छोड़ देते हो Hmm. उस एग्जिस्टेंस के हाथ में, ठीक है. अब ये छोड़ने का मतलब वो उस अहंकार को भी छोड़ देते हो Hmm. कि मैंने छोड़ा, Hmm. ये मैं भी नहीं होता, छोड़ दिया, छूट ठीक है. गया, Hmm. तो वो एग्जिस्टेंस अपने आप, तो जब मेरे अंदर वो मैं आता है, Hmm. तो मुझे लगता है कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, व्हाट इज दिस इज Hmm. नॉट फॉर मी, आई एम आई शुड डू समथिंग गुड विद माय लाइफ। Hmm. बट जैसे ही वो मैं जाता है Hmm. और जब एग्जिस्टेंस आ जाता है, वो इसमें एक बहुत अच्छा कबीर जी का दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, Hmm. जब हरि था मैं नाही, मैं नहीं. कि Correct. जब मैं था Hmm. तब वो हरि मतलब ईश्वर नहीं था, Hmm. और जब ईश्वर मेरे अंदर, ईश्वर है तो मैं Hmm. नहीं हूँ। Hmm. सब अंधियारा मिट गया Hmm. जब दीपक देखा माही। Hmm. सारा अंदर का जितना भी डार्कनेस था, Hmm. इट हैज गॉट डिस्पेल्ड Correct. व्हेन आई हैव सीन दैट लाइट विद इन मी। Hmm. तो वो जब तक दीपक आप देखते नहीं हो, जब तक वो जो बुद्ध कहते हैं आपो दीपो भव, Hmm. जब तक स्वयं के अंदर वो दीपक जलता नहीं है, Hmm. तब तक मन एक्टिव है, Correct. और जब तक मन एक्टिव है वो हमेशा ड्युअलिटी में लगा रहेगा, Hmm. क्योंकि मन का स्वभाव है ड्युअलिटी। Correct.
यस और नो, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, हेल एंड हेवन, Yes. ये सब मन कब तभी काम कर सकता है Mm-hmm. व्हेन देयर इज अ ड्युअलिटी। Mm. और जब तक मन है Mm. तब तक आपके अंदर आगे 2 कदम आप आगे चलोगे, फिर सोचोगे कि नहीं मैं ऐसा कर लेता, हमेशा आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, यू विल ऑलवेज बी इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट। Mm-hmm. Mm-hmm. हो सकता है आपका मन आपने बहुत ट्रेन करके बहुत डिटरमिन्ड किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो आप 50 कदम आगे चल सकते हैं, लेकिन फिर भी 5 कदम पीछे चलने की भी मन में आएगी। तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। इवन समटाइम्स पीपल से दैट वी नीड टू कंट्रोल अवर माइंड, वी नीड टू ट्रेन अवर माइंड, वी शुड Exactly. बी डिटरमिन्ड। Yes. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज टॉक्स की Okay. क्योंकि आप जब मन को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, आप समझिए कि आप उस समय ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करते हैं। True. जब भी मैं किसी को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मैं प्रभु स्मिता को कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं, तो प्रभु स्मिता की प्रकृति नहीं है कि वो कंट्रोल हो, लेकिन मैं कंट्रोल करने की बात कर रहा हूं, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट हम दोनों के बीच में रहेगा। आप नहीं चाहते कि कंट्रोल हो और मैं चाहता हूं आपको कंट्रोल करें, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिक हो सकता है कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूं, बहुत ओवरपावरिंग हूं और मैं आपको कुछ समय के लिए कंट्रोल भी कर सकता, लेकिन क्या आप उस समय एक स्वस्थ मानसिकता में रह पाओगे? नहीं। क्या? क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं है कंट्रोल होना। और क्या मैं भी एक पूर्ण निश्चिंत भाव में रह पाऊंगा? क्योंकि मुझे हमेशा वो कंट्रोल चेक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं वीक हुआ आप निकल जाओगे हाथ से। यही चीज हम मन पे लागू कर रहे हैं। हम मन को जब कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हम एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर जनरेट करते हैं। द्वैत स्वभाव है मन का, करेक्ट। द्वैत, और जहां द्वैत है, द्वैत मतलब ड्युअलिटी, और जहां द्वैत है वहां निश्चित तौर पे द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व इज अ हिंदी वर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। Wherever there is a duality, there will surely be a conflict. And the whole purpose of all the spiritual techniques, methodologies, is one purpose: to take you beyond this duality. Correct. To take you in a state of Advait. Advait, अद्वंद। जब तक मन है तब तक तुम द्वंद में ही रहोगे। मन के पार जाना, इसलिए कई बार मेडिटेशन की बहुत अच्छी परिभाषा है। मेडिटेशन इज द डेथ ऑफ द माइंड। आजकल चल रहा है ना माइंडफुलनेस, यस, पीस ऑफ माइंड, ये सब ठीक है, ऊपरी ऊपरी तौर से ठीक है, आपको थोड़ी अवेयरनेस होती है, थोड़ी आप शांत होते हो, लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। ये मन को शांत करने की तत्कालिक रूप से टेम्परेरी वे में मन को थोड़ा शांति देने की प्रक्रियाएं हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन इसको हम कहें कि ये ध्यान है, इसको हम कहें कि ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है, या ये अध्यात्म है, या ये समाधि है, तो वो गलत हो जाएगा। करेक्ट। मन के पार जाना, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां मन होता ही नहीं है, और जब आप उस अवस्था को छू लेते हो, when you establish yourself in that state of beyond mind, of what we call as nothingness, शून्यता को, तो फिर कभी वो, जैसे आपने कहा ना कि समुद्र, कभी आप आगे जाके फिर लगता है कि मैं, वो द्वैत तब तक चलता रहेगा जब तक आप मन के अधीन जीवन जी रहे हो। जैसे ही आप मन के पार चले गए, द्वैत खत्म हो जाएगा। फिर क्योंकि फिर एग्जिस्टेंस काम करेगा, आप तो हो ही नहीं, फिर आप नहीं हो, फिर तो हो रहा है। और पहले जैसे जब मेरी जीवन की यात्रा जब शुरू हुई थी, तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि there were many times when I used to, I get frustrated. Sometimes we're doing meditation and we feel like, what is going on, what I'm doing. Exactly. There are sometimes when mind gets active and it tries to create scenes. Yes. कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या बेवकूफी है, इससे क्या होगा, इससे कौन सा खाने को मिलेगा, you have a family behind, you have this, you like, so there were lots of things that mind brings rational thoughts also. Exactly. To try to convince you. आपको याद होगा हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक
सिंबॉलिक स्टोरीज बनती हैं कि जब कोई ऋषि ध्यान करता था, आपने कभी महाभारत या रामायण में देखा होगा कि कोई ऋषि ध्यान कर रहे हैं और इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। करेक्ट। ठीक है, इंद्र परेशान हो गया है, स्वर्ग में एक नीचे ऋषि किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं और ऊपर कहीं आसमान या स्वर्ग में एक पोर्ट्रे किया जाता था कि इंद्र और सभी देवता परेशान हो गए हैं। करेक्ट। और वो इंद्र के पास गए हैं और इंद्र जो है, तो आप समझिए क्या हो क्या रहा है, सिंबॉलिकली इसे समझे कि वो सब आपके मन के प्रकार हैं। वो इंद्र, वो वायु, वो सब जो बताया है, वो पंच महाभूत, वो सब आप ही के एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है। लेकिन जैसे ही आदमी इंटीग्रेशन में आता है, मेडिटेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द, तो वो जो अब तक जो स्वच्छंदता मिली हुई थी सबको, मन कोई एक वस्तु नहीं है, आपके भीतर, inside you you are a polypsychic being. There are millions of mind within you. Yes, that's true. Okay. तो वो समस्त देवता अंदर के वो हिलने लग जाते हैं क्योंकि अब इंटीग्रेशन होने लगा है। अब व्यक्ति एक रूपता में आने लगा है, वो मन के पार जाकर मन की शून्यता में उतरने लगा है। तो आपने बुद्ध की भी जब जीवन में सुना होगा कि बुद्ध का जब लास्ट में जब बुद्ध बैठ गए एक पेड़ के नीचे, ठीक है, आपका नाम भी मैत्रेयी भी आप yes, है, तो मैत्रेय, मुझे बुद्ध का जर्नी बहुत, आई मीन आई एम इंस्पायर्ड बाय बुद्ध। बुद्ध का जीवन तो बहुत साइंटिफिक रहा है और बहुत लॉजिकली हम उसे समझ सकते हैं कि किस तरह से वो पेड़ के नीचे बैठे और कि भाई अब तो जब तक, क्योंकि वो भी मेरी और बुद्ध की कहानी, मैं बुद्ध से तो अपने आप को नहीं जोड़ूंगा पूर्ण, लेकिन बुद्ध की जिस तरह की कहानी रही कि वो अलग अलग जगह गए, हर घाट घाट का उन्होंने पानी पिया, ठीक है, कभी किसी के पास गए और उन्होंने जो ध्यान सिखाया उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके उसकी ध्यान की साधना करी, लेकिन उस जब ध्यान वो उनसे नहीं लगा, फिर वो दूसरे गुरु के, मतलब अलग अलग जगह जाके हिट एंड ट्रायल्स हैं, ठीक है, तो कर करके फिर फाइनली वो बैठ गए एक पेड़ के नीचे और कि भाई अब तक जब तक ध्यान नहीं होता तब तक, जब तक वो शून्यता नहीं आती तब तक अब मैं, ठीक है, तो उसमें आता है जिक्र की मारा करके जो राक्षस था उसने उनको सिड्यूस किया, उनको कभी अपनी कन्याओं को भेजा, कभी तीर भेजे, कभी ये भेजा। अब इसको सिंबॉलिकली समझेंगे, ये मारा क्या है, ये आप ही का मन है। करेक्ट। ठीक है, जिसे हम वो सिंहासन वाले इंद्र वगैरह जब कर रहे थे तो वो आप ही के मन के प्रकार है। वो नहीं चाहते कि आप वो कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हैं, वो आपको मन, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान की गहराई में आएंगे मन की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपका मतलब किस आप से, उस छोटे आई से बात कर रहा हूं मैं, अहंकार दे उस आइडेंटिटी से जो आपके दिमाग में अब तक फीड है, जो आपने अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने पीयर से, अपने आसपास लोगों से जो आपने कंडीशनड आइडेंटिटी बनी है, जिसको अब एक ईगो बोलते हैं हम, वो ईगो आइडेंटिटी वो टूटने वाली है अब। जैसे ही आप ध्यान में उतरेंगे वो टूटने वाली है। और पूरा सर्वाइवल मैकेनिज्म उसको बचाने की कोशिश करता है। यस, करेक्ट। कई बार मैं कहता हूं मेडिटेशन इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बहुत करेज चाहिए इसमें, करेक्ट, बहुत करेज चाहिए। So if a person is starting new into meditation and yoga and into spirituality, what are the first 2 steps or 3 steps would you recommend before even he starts the process of yoga and meditation? I think आजकल एक चीज है that like the quantum physics, neuroscience, lots of they've advanced a lot. तो एक चीज तो मैं कई बार जब मेरे पास लोग आते हैं और इस इच्छा को लेके आते हैं और अगर वो पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है तो मैं उनको कहता हूं कि आप थोड़ा सा, क्योंकि आजकल क्या है कि they want everything science based. Yes. Okay. तो मैं उनको ये नहीं कहता हूं कि पहले योग की पुस्तकें उठाओ, मैं उनको कहता हूं पहले जाके थोड़ा क्वांटम फिजिक्स को समझो। जो थोड़े कॉन्सेप्ट्स अभी सामने हैं जो प्रूफ भी हैं, ठीक है, चाहे वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, क्वांटम इंटेंगलमेंट हो, ठीक है, ऐसी कई जो थ्योरीज हैं, टेस्ला को पढ़ो, ठीक है,
विंची को पढ़ो, आइंस्टाइन को पढ़ो, क्योंकि आज का जो युवा है वो इनसे ज्यादा प्रभावित है। अगर मैं उनसे कहूँ पतंजलि को पढ़ो तो वो कहेगा क्या ये आउटडेटेड चीज बात कर रहे हो, ठीक है। वो प्रैक्टिकल इंस्टाग्राम से। पे पतंजलि का पोस्ट डालेगा तो कूल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो आइंस्टाइन का पोस्ट डालेगा तो लगेगा कि अच्छा ही। तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि थोड़ा आप उनको पढ़ो, कि वो भी एक ऋषि ही हैं, ठीक है। जब हम आइंस्टाइन की बात करते हैं, हम टेस्ला की बात करते हैं, वो भी एक ऋषि हैं। हमारे जब भारतीय दर्शन के ऋषियों में और जो इन ऋषियों की हम बात करते हैं तो बस इतना सा अंतर है, एक उसे अंदर खोज रहा था, एक उसे बाहर खोज, ठीक है। एक उसे दूरबीन से खोज रहा था, गैलीलियो की बात करें, एक उसे दूरबीन से खोज रहा था, एक उसे मन के अंदर की आंखों से खोज रहा था। और वेद कहते हैं यथा पिंड तथा पिंड, जो कुछ इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। एज अबव सो बिलो, मैक्रोकॉस्म माइक्रोकॉस्म, यू आर नथिंग but just the blueprint of this universe. And every cell within you is nothing but just a blueprint of you. Or rather, it should be better to say this: every cell of you is just a blueprint of this whole universe. Very, very, very well. या तो आप इस सेल को समझ लो, या गैलीलियो की तरह और आइंस्टाइन की तरह ब्रह्मांड को समझो, कॉस्मोलॉजिस्ट की तरह कॉस्मोलॉजी को समझो। साइंस बिहाइंड दैट बोथ एक ही है, पहुंचोगे वहीं, ठीक है। कोई जल्दी तो इसलिए बेटर है कि ये पास है ना, इसे ये ज्यादा समझा। हमारे ऋषि ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने कहा कि क्यों हम आइंस्टाइन और टेस्ला की तरह मेहनत करें, हमें तो आंख बंद करके बैठना है। तो फिर भी क्योंकि आज का जो युवा है वो ये सब पढ़ना ज्यादा चाहता है, तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि थोड़ा आप टेस्ला को, आइंस्टाइन को, विंची को, क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो साइंस को थोड़ा ये पढ़ो। इससे आपका थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि फिर जब आपको ये समझ में आने लगेंगे और मैं फिर वही चीजें आपको ध्यान में एहसास होंगी, तो आप बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। और फिर आपकी इंक्विजिटिवनेस, बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो इंक्विजिटिवनेस हो। कोई भी चीज हम सीखते हैं जीवन में, कोई भी चीज, ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको टेनिस का मैं एक कोर्ट बनवा देता हूँ आपके घर में, टेनिस के रैकेट ला देता हूँ, टेनिस का बेस्ट प्लेयर हो नोवाक जोकोविच को भी आपके घर पे ले आता हूँ सिखाने के लिए, क्या ये काफी है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट? एग्जैक्टली। तो सोर्स तो सब जगह है, हजारों लाखों किताबें हैं अध्यात्म पे, आज गुरु हैं हर शहर में, आपको अच्छे गुरु मिल जाएंगे जो सच में कहीं पहुंचे हैं, जिनके पास काफी चीजें हैं आपको देने के लिए। लेकिन आपका इंटरेस्ट डेवलप होना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए मुझे ये समझना होगा कि आप किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज फिर मैंने जैसे कहा कि योग की क्लासेस, मेडिटेशन की क्लासेस आजकल हर शहरों में आपको मिल जाएंगी। तो आप जुड़े धीरे धीरे, पहले उतरे, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने आप रास्ते बनते रहेंगे। करेक्ट, अपने आप रास्ते बनते रहेंगे। मेरा जीवन यही है कि अपने आप रास्ते खुलते गए, दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक वो हो जाता है। करेक्ट, सो कॉल्ड ग्रेजुअल प्रोसेस। यस। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ऑब्वियसली अगर आप इसी फील्ड में जाने का मन बना चुके हैं कि मुझे अध्यात्म, अब अध्यात्म को आपको प्रोफेशनली भी देखना है, क्योंकि आजकल कई युवा हैं जो योग में पूरी तरह से प्रोफेशनली आना चाहते हैं, वो अपना घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं। तो ठीक है, बहुत सारी योगा कोर्सेज होते हैं सब जगह, सीखिए। लेकिन मैं उन सबको यही हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर योग के क्षेत्र में आए तो योगी बने, उस सत्य को धारण करें। फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनकर आप उसको योग को सीमित ना करें। एग्जैक्टली। फिटनेस एक पार्ट है योग का, और वो बहुत फायदेमंद है। थेरेपी एक पार्ट है योग का, लेकिन जब योग में आए हैं, नियति आपको जब योग में लेकर आई है, मैं भी जब योग में आया था तो यही सोच के आया था
कि यार अच्छी बात है, आसनास प्राणायाम, मेरा बॉडी भी अच्छा है, मैं आसनास वासनास अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर अच्छी जॉब लग गई, ठीक है, तो ठीक ठाक पैसा भी कमा लेंगे। तो क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, तो ये भी देखना था कि जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकता हूँ, मेरी करेक्ट। बेसिक। तो हाँ, लेकिन मैंने कहा ना कि अब वो सब तो बहुत पीछे रह गया। एक टाइम था, निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं है कि शुरू में मैंने भी यही सोचा था कि 4 पैसे भी आएंगे, योग में मेरी रुचि भी है, और मैं इसके माध्यम से अपना घर भी चला सकूंगा और समाज का भी एक अच्छा काम भला कर सकूंगा। लेकिन आज अब जिस जगह पे आया हूँ, अब ये मैटर नहीं है कि पैसा वैसा, क्योंकि अब मैटर ये है कि योगत्व जीवन कितना है और कितने लोगों के जीवन में वो योग की ज्योति को मैं करेक्ट। जला सकता हूँ, प्रकाशित कर सकता हूँ। तो उसी काम में अब मैं और हमारी जो संस्था है संबोधि, वो लगी हुई है। Can you talk a little more about Sambodhi Foundation and also self-transformation, and what is the Mahapran Kriya or Mahapran self-transformation methodology or technique? If you can give a little bit insight on that. संबोधि फाउंडेशन, तो ये 2016-17 में जब एक अवेकनिंग मोमेंट जीवन में हुआ, उसके बाद हमारे ही एक ऋषि थे जिनका मेरे जीवन में एक बड़ा योगदान रहा। उनका नाम था स्वामी मंगलेश्वर बाबा। वो मुख्य रूप से उत्तरकाशी क्षेत्र में रहते हैं। तो उन्होंने ही संबुद्ध नाम से उच्चारण किया, तो और उन्होंने कहा कि ये तो वही संबोधि की अवस्था के लिए बोला। तो वहां से एक नाम संबोधि आया, ठीक है। संबोधि मतलब इक्वानिमिटी, एक समान अवस्था, ठीक है, समबोधि, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट। और यही स्टेट, ये ठीक है, थोड़ा ये पाली से आया शब्द है, पाली एक जो भाषा रही है भारत में, ठीक है। ये वही शब्द है जब हम बात करते हैं मोक्ष की या समाधि की, ठीक है, निर्विकल्प समाधि की, तो वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है संबोधि, ठीक है, सिनोनिम है। और संबोधि फाउंडेशन जो है एक संस्था 2016-17 में हम लोगों ने बनवाई लंदन। और इसका इसका उद्देश्य लोगों को, युवाओं को जो आध्यात्म की गहराइयों में उतरने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, जो स्वयं को समझना चाहते हैं, इस शरीर देह के आगे जानना चाहते हैं कि क्या है, मैं कौन हूँ, जिनके मन में ये प्रश्न उठते हैं और तीव्रता से उन्हें जीने सोने नहीं देते, ऐसे युवाओं तक, ऐसे लोगों तक हम पहुंचे और उनकी भरसक मदद करें, ठीक है। और उनको हम भी ऐसे ही थे, हम भी चल पड़े थे और रास्ते खुलते गए, अच्छे लोग आते गए। तो हमारा उद्देश्य यही था कि इस तरह के जब भी कोई जीवन में जिसको ये इच्छा पैदा हो कि उस संबोधि अवस्था तक पहुंचना है, उस मोक्ष अवस्था तक की एक तीव्र उत्कंठा हो, डीप इनक्विजिटिवनेस हो, तो उनकी हम मदद करें। तो एक संस्था बना के हमने इस तरह से काम करना शुरू किया। और इसमें एक कार्यक्रम हम कई बार ऑर्गेनाइज करते हैं, कई जगह, कई देश विदेश में किए हैं। दी अवेकनिंग प्रोग्राम, लगभग 7 दिन का 21 घंटे का ये कार्यक्रम होता है, जिसमें कुछ जो महाप्राण क्रिया जिसके बारे में आप पूछ रही थी, उसको भी हम उसकी भी दीक्षा देते हैं, महाप्राण क्रिया की। पूरा प्रोसेस है उसका। तो महाप्राण क्रिया जैसे आप पूछ रहे थे, तो ये हुआ 2017 में, जब जीवन में वो अवेकनिंग मोमेंट आया, आहा मोमेंट आया या संबोधि मोमेंट आया। तो उसके बाद कुछ समय तक तो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। फिर जब थोड़ा बोध आया, थोड़ा जग कुछ कह सकते हैं, तो देवप्रयाग एक जगह है ऋषिकेश के पास। हाँ, ऋषिकेश के पास एक देवप्रयाग एक जगह है, तो वहीं कुछ दिन वहीं था। तो ऐसे वही ना, गंगा के किनारे बैठ जाया करते थे, थोड़ा बैठ गए, शांति से बैठ गए, आंखें बंद करके, कल कल धारा बह रही है, ठंडा पानी छू रहा है, तो एक अलग ही अनुभूति होती थी। अब ध्यान में उतरना तो क्या है कि चुटकी बजाते हो जाता है 1 सेकंड में, सबमरीन की तरह ध्यान में गहराई में। तो ऐसे ही वहां बैठे थे, तो एकदम कुछ इस तरह के आभास हुए, श्वसन की गति अपने आप बदली और कुछ इस तरह की चीजें होने लगी शरीर में और विजन्स में, और जो कि काफी कुछ उससे ही सिमिलर थी
जो मुझे 2016 नवंबर में, जिसे मैं अवेकनिंग मोमेंट मेरे जीवन का कहता हूँ, ठीक है, उस समय मुझे हुई थी। तो लेकिन वो हुई क्योंकि मैंने कहा ना कि बीज जो है तो 20-25 साल पहले से या प्रारब्ध से भी वो डला हुआ था, जिसको सही लोग आते गए और वो धीरे धीरे ब्लॉसम होता गया। लेकिन जो 2017 में जब मैं बैठा देवप्रयाग में था, तो ये जो चीज हुई, तो ये चीज ने मुझे करीब करीब वही दृश्य दिखाए, वही एक्सपीरियंस में मुझे लेके गया जो मेरे जीवन में मैंने 2016 नवंबर में उस अवेकनिंग मोमेंट में जिया था। तो ऐसा एहसास हुआ कि इस, और क्योंकि काफी एक कैथारसिस और सब कुछ इसमें हो जाता है, ठीक है, शुद्धता बेसिकली। अभी जो ये पूरा प्रोसेस है महाप्राण क्रिया का, ये क्या करता है, ये आपको आपकी शून्यता में गोता लगवा देता है, आपको उस क्षण के लिए अपनी असल जो आपका ट्रू नेचर है, योर एब्सोल्यूट सेल्फ, यस, इट इज नथिंग, योर एब्सोल्यूट सेल्फ is nothing. Yes. You are nothing. So this methodology gets me there. मैं कह रहा हूँ बहुत गहराई से बात समझनी है। कई बार लोगों को मैंने सुना है और अच्छे अच्छे गुरुओं को भी मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि ध्यान की गहराई में हमें ये अनुभव हुए, मैं जब समाधि में रहा तो मुझे ये अनुभव रहे। मेरे जीवन का वाकया अगर मैं शेयर करूं तो मैं ये कहूंगा कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ। मैं आपको ये कह ही नहीं सकता कि वहां क्या है। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज, वो भगवान का फीलिंग जो है, वो इन्फिनिट फीलिंग जो है, नहीं है, वो आपको नहीं, महसूस हुआ, और क्या नहीं है हुआ वहां, एक्चुअली? महसूस करने वाला कौन? मैं तो मैं ही नहीं हूं वहां। तो वहां तो मैं ही नहीं हूं, तो मैं कैसे बता पाऊंगा आपको कि वहां क्या था। अगर मैं वहां था तो जैसे मैंने कहा आपको कि फिर तो द्वैत हो गया होगा। तो ये चीज शब्दों में, मैं आपसे कुछ समय पहले भी जब चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने यही कहा था। अभी क्या है, बड़ा मुश्किल होता है, इट्स सो डिफिकल्ट, क्योंकि वही रहीम की बात आती है कि जो कहत है वो जानत नहीं, जो जानत है वो कहत नहीं। जो कहते हैं वो जानते नहीं हैं, और जो जानते हैं कह नहीं सकते। लेकिन अब क्या होता है कि when I am around disciples and when I am around people like you, you know, who are equally interested and who have seen, who have experiences, and when we try to share our experience, I have no experience. Yeah, I can relate to whatever you're saying, but yeah, it happens. Sometimes you're not there, you don't know what just happened. ऐसा होता है. It's absolutely see, मुझे याद आ रही है कि बहुत अच्छी चीज है, सॉरी मैं थोड़ा सा उस जोन में चला गया था। जय कृष्ण मूर्ति एक बहुत बड़े विचारक, ग्रेट फिलोसोफर एंड मेडिटेशन एनलाइटेंड गुरु हमारे भारत पे रहे। उनकी एक बहुत अच्छी चीज कहीं मैंने सुनी, और वो बहुत मेरे से तो बहुत एप्ट मिलती है। एंड somebody asked him that आपको वो इनलाइटनमेंट वाली अनुभूति कब हुई? तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया जो कि मेरे जीवन से बिल्कुल जुड़ता है। उन्होंने कहा कि कैसे कोई बता सकता है कि कब हुआ, बिकॉज उस समय तो ना टाइम होता है ना स्पेस होता है। Yes. At that moment there is no mind, there is no time, there is no space. उसके बाद क्या हुआ? After that awakening happened, थोड़ा डर भी लगता है। I mean, I also felt. मैंने कहा आपको कि उसके बाद जब मेरे वो संबोधि मोमेंट था, उसके बाद कुछ समय तक तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ होता है। कौन हूँ का पता तो लग गया, लेकिन वो कौन हूँ ग्रैस्प नहीं हो पा रहा है। यस।
एकदम आपको आके बोल दो कि हम्म, आपके फादर जो है वो जो है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है, हम्म, या कुछ भी ऐसा, एंड यू आर लिविंग अ वेरी मीडियोकर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल, तो हम्म, सडनली तो यू वोंट कॉम्प्रिहेंड कि एक what प्राइवेट is जेट आपको happening? लेने आ रहा है, Hmm. एंड रेड कार्पेट इज लाइक Oh व्हाट्स God. गोइंग ऑन। Yeah, true. यहाँ तो that's a very small and a pity example if I Mm-hmm. can compare a richest person on the planet। यहाँ तो आप ही यूनिवर्स हो जाते हो। Mm, true. आप Yes, I जब totally अपने हाथों understand. को देखते हो, अपने शरीर को देखते हो, तो वो दिखता ही नहीं है आपको। Yes, होता है. आप I इस can एक totally relate. आप Yes. जब समझिए, आप एक इस कन्फाइंडमेंट, अभी आप, मैं हूं एक शरीर रूप में आपको दिख रहा हूं, लेकिन उस समय ये अवस्था होती है कि आपकी विशालता, आपका वास्टनेस इतना प्रचंड होता है कि आपका हाथ भले ही यहाँ दूसरों को दिख रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये हाथ तो कहीं, इट्स बिकम लाइक, जिसको कृष्ण ने या हमारे वेदों में कहा गया है, भगवत में कहा गया है, विराट पुरुष। Mm-hmm. वो विराट पुरुष आप हो जाते हो, जिसको वेद कहता है हम ब्रह्मास्मि। Mm, true. लेकिन एक चीज यहां है कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड हो जाता है, नोअर ही नोन हो जाता है, एक्सपीरियंसर ही एक्सपीरियंस हो जाता है। इसलिए ये कहें कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था, मैं तो बहुत छोटे शब्दों में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको और आपके व्यूअर्स को समझा सकूं Mm. कि बेसिकली, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं उस चीज का ये 0.001% भी मैं नहीं समझा पा रहा। Yes. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसे समझा दे। नहीं होगा. लाओ से Yes. कहते हैं ना, द ट्रुथ कैन नॉट बी टोल्ड। Mm. लेकिन Yes. बुद्ध के साथ भी ये परेशानी रही, महावीर के सामने भी, कृष्ण के सामने भी, कि भाई जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब मैत्रेयी आती हैं और वो पूछती हैं, तो आपका मन करता है कि मैं कुछ तो शेयर करूं, Mm. ठीक है, कुछ तो बताऊं, ताकि पता नहीं कितने लोग उससे इंस्पायर हों। True. और ये छोटी छोटी मानसिकताओं में, नैरो माइंडेडनेस में लोग Mm. अटके हुए हैं, छोटे छोटे अहंकारों में लड़के एक दूसरे का Mm. मर्डर तक कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। इन लोगों को, इनकी कहीं ना कहीं इनको ये एहसास हो मेरे इस इंटरव्यू से कि कितने विशाल हैं वो, कि वो सब समस्त सब कुछ वही है, और वो एक छोटा, अपने आप को छोटा समझ के, एक छोटी सोच के साथ जी के इस धरती को कहीं लहूलुहान कर रहे हैं। तो अध्यात्म बहुत जरूरत है, अध्यात्म की, क्योंकि आध्यात्मिकता के माध्यम से ही आप अपनी उस विस्तारता को, वास्टनेस को, इन्फिनिटनेस को समझ पाओगे, उसमें उतर पाओगे। फिर Yes. ना कोई भेद रहेगा, ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई ड्युअलिटी नहीं रहेगी। फिर वहां पर आपको, यू डोंट हैव टू बी काइंड ऑल्सो, यू डोंट हैव टू बी ट्रुथफुल ऑल्सो, यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो। योर होल, यू विल बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सचिदानंद, ट्रूथ, ब्लिस एंड कॉन्शियसनेस। Yes. फिर फिर आपको, you don't have to be kind, that oh I'm very kind, no, your whole self, every cell inside your body will dance in a harmony of compassion। True. फिर ये भेद नहीं रहेगा कि मेरा लैब्राडोर आया तो ओहो बेबी वेरी गुड, ओ माय डॉग, और अगर उधर सांप आया तो, फिर उधर सांप या कॉकरोच हो, इधर आपका लैब्राडोर हो, या इधर आपकी, आपका पति या आपकी पत्नी हो, आप समस्त जीव जगत के प्रति आपके अंदर एक विशाल कंपैशन का भाव उमड़ आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको भेद ही नहीं दिखेगा। ये है Mm. आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था। Yes. और अभी ये थोड़ा चाहे आप एक. योग के, Mm-hmm. इसको आप योग आसन के माध्यम से भी पहुंच सकते हो, Mm-hmm. इसको आप अलग अलग तरीकों से, Yes. आप इसको प्राणायाम, ध्यान, ठीक है, बहुत सारे मंत्र उच्चारण, Mm-hmm. कई तरीकों से उस एक रूपता के साथ, लय योग, भक्ति योग, जप योग, राज योग, कई तरह के योग, अलग अलग रास्ते हैं, उनके माध्यम से आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। Sure. मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे वो चीज काम करी तो जरूरी नहीं कि वो आप पर भी काम करे। गुरु का बस काम इतना होता है, बुद्ध पुरुष का काम इतना होता है कि जब आप उसके पास आए तो वो, उसके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसको मतलब यही समझिए, डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं, ठीक Mm. है, हम केमिस्ट के पास भी जाके बोल सकते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है, वो Mm. पैरासिटामोल दे देंगे, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो ढंग से चेक करे कि बुखार किस कारणवश आया है, इस Correct. बुखार के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। हो Mm. सकता है वो बुखार इसलिए आया है क्योंकि आपका लीवर खराब हो रहा है,
ठीक है, तो पैरासिटामोल खाने से आपका बुखार ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर सही डायग्नोसिस करता है और उसका सही ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, तो यही एक गुरु का और डॉक्टर का काम हो जाता है। नहीं तो दवाई तो केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से हम समझें। Yeah, a lot of insights that you're giving, actually. That's really profound but simple. Well, आपने बताया कि गुरु की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन में. So कभी कभी क्या होता है, I have seen a lot of people, my colleagues and friends, they want to do on their own. I mean to say, they want to do meditation on their own. They want to try different methodologies on their own. So Kundalini yoga, chakra yoga, meditation, कुछ भी they have tried and it's hit back to them in adverse effect. I mean to say, वो benefit जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं मिला, वो डैमेज किया उसको. I mean, they were literally had severe headaches and all that. How important is to have a guru? ये ठीक वैसे ही है जैसे पैरासिटामोल आप केमिस्ट से भी लेकर खा सकते हैं, उससे 99% मुझे नहीं लगता किसी को नुकसान होता होगा। लेकिन अगर आप केमिस्ट के पास जाके, क्योंकि भारत में तो आपको स्टेरॉइड भी मिल जाएगा मेडिकल की दुकान पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो आपने जाके स्टेरॉइड ले लिया और खा लिया तो 50% चांसेस हैं कि काफी कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं बिना गुरु के भी, बिना आप इंटरनेट पे, टीवी पे देख के या यूट्यूब पे देख के आपने कुछ आसन कर लिए, हल्का फुल्का सा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा 1 मिनट 15 सेकंड कुछ आपने अनुलोम विलोम कर लिया थोड़ी थोड़ी देर के लिए, वो सब ठीक है, उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कुछ स्टेरॉइड प्रैक्टिसेस पे जाते हैं, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ठीक है, कुछ बंधास की जब हम बात करते हैं, मैं अभी बहुत योगिक हठ योगा स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, जैसे बंधा एक है, विपरीत करनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, कुछ मुद्राओं का जो जिक्र आता है, जो आपके व्यूअर्स हैं जो योग के होंगे वो बिल्कुल समझते होंगे। बंधास की जब हम बात करते हैं, कुंभक की बात करते हैं, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम आपने कर लिया मान लीजिए 1 मिनट 2 मिनट तो ठीक है, लेकिन कई बार कुछ क्रियाओं में 15-15 मिनट तक भी लोग कर रहे हैं। कपालभाति में मेरे कई मिलने वाले हैं जिन्होंने कभी किसी से योग नहीं सीखा और रोज 15-15 मिनट कपालभाति करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा तांत्रिक विधियों में आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा गहरा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या है कि देखिए बहुत सारी शक्तियां भी हैं आपके इर्द गिर्द जो उस समय आपके साथ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, और जब आप कुछ उच्च श्रेणी की क्रियाओं को करते हो तो समझिएगा कि बहुत कुछ अंदर हो सकता है शरीर। ठीक है, इसलिए वही है कि स्टेरॉइड लेने के लिए तो बिल्कुल है कि आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। आपको गुरु के पास ही जाना चाहिए जब आप इस उच्च तरह की विधियों को, उच्चतम विधियों को यूज करते हैं या करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हर गुरु जो अच्छे गुरु हैं जिन्होंने कहीं कुछ साधा है, ठीक है, वो उनके मार्गदर्शन में जब आप करते हो, मान लीजिए कोई गुरु हैं जिन्होंने भस्त्रिका को साध रखा है, ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा मतलब नहीं है कि मैंने सांस लिया, हाइपर वेंटिलेशन छोड़ा, प्राण पान व्यान उदान समान, पंच वायुओं का किस तरह संतुलन खेला जाता है उसके अंदर, उसको अगर किसी ने साधा है और फिर आप उसके साथ जाते हो तो उसे पता है कि वो ये नहीं करवा रहा आपसे कि अच्छा सांस ले लो और छोड़ दो, हाइपर वेंटिलेशन कर लो, थोड़ा डिजीनेस आ जाएगा, थोड़ा क्लीनिंग होगा, नहीं, वो उसको एक प्रोपोर्शन डालना है आपके अंदर कि पंच प्राणों का प्रोपोर्शन कैसे, क्योंकि एवरीवन इज, आप क्या खा के आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, वो फिर उसमें बिल्कुल जैसे वही ना, आयुर्वेद में भी जब एक बहुत उच्च कोटि की दवाएं लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा परहेज भी करना पड़ता है। ठीक है, जब आप उच्च कोटि की दवाएं लेते परहेज बहुत करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा गहराई से काम करती है। ठीक है, तो वो चीज गुरु ही आपको समझा पाएगा। ये आजकल जैसे चल रहा है कुंडलिनी योगा और ये सब, मैंने देखा है लंदन में कुंडलिनी योगा की क्लासेस में 1-2 बार मैं बहुत पहले अटेंड भी किया है। तो वो जो करवाते हैं मैं नहीं समझता कि वो किसी को घर में बैठकर करना चाहिए। और इस तरह की कुंडली योगा तो एक चीज है, और भी कई इस तरह की चीजें करवाते हैं। मैंने गुरुओं के नाम तो ना लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं
कि वो करते हैं जब लोग, तो बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, हाँ, वही, मानसिक अस्वस्थता आ यस, सकती है, शारीरिक यस, अस्वस्थता तो आएगी, फिजिकल इश्यूज तो, हेल्थ इश्यूज तो हो ही सकते हैं, हम्म, मानसिक रूप से भी काफी हम्म, प्रॉब्लम्स आ सकती यस, हैं। तो ये चीजें तो बिल्कुल गुरु के निर्देशन में करें। जैसे अभी महाप्राण क्रिया की जब हम बात करते हैं, तो वो सिर्फ मैं अपने ही गाइडेंस में करवाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी नहीं करवाता। ओके, ठीक है, वो पूर्ण दीक्षा वाला प्रोसेस होगा। आप आएंगे, करेक्ट, आपको पूरा एक प्रॉपर चार्ट दिया जाएगा, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 3 दिन तक आप उसे फॉलो करते हैं, डाइट को और कुछ चीजों को। चौथे दिन हम आपको महाप्राण क्रिया देते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ मैं ही देता हूँ। आज ठीक है, 4 साल हो गए, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, कई डिसाइपल्स हैं जो भी टीचर हैं, लेकिन वो भी नहीं देते हैं, वो मैं ही यस, देता हूँ। मेरे जो डिसाइपल्स हैं उनके साथ भी है कि जब तक तुम उसको पूरी तरह से आत्मसात ना कर लो, ठीक है, तब तक तुम देने के अधिकारी नहीं हो, नहीं, क्योंकि बहुत कुछ यस, बिगड़ता है। वेरी ठीक ट्रू, है, और यस, हो भी सकता है। यस। वेल संबोध जी, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो, हु इज योर इंस्पिरेशन? आपका गुरु कौन है? आप किसको देख के यू टेक द इंस्पिरेशन? लाइक हाउ मेनी ऑफ देम टेक फ्रॉम यू? आई थिंक इंस्पिरेशन तो अब इस अवस्था में तो मुझे लगता है कि कण कण में इंस्पिरेशन में खोज लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं वही कहते हैं, जैसे हमारे गुरु दत्तात्रेय के लिए कहते हैं कि उनके 24 गुरु थे, तो मैं उनके तो 24 थे, मेरे तो पता नहीं करोड़ों अरबों गुरु हो चुके हैं अब तक। ठीक है, और मैं तो चींटी के प्रति भी उतना ही गुरु तत्व की भावना से देखता हूँ, जितना मैं किसी मंगलेश्वरी बाबा, जिनका भी मेरे जीवन में एक बड़ा योगदान रहा है, स्वामी निरंजनानंद, जिनका एक बड़ा योगदान रहा है, और ऐसे कई मेरे माता पिता का एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी कि मैं अपने इस क्षेत्र में आगे यस, बढ़ूं। ठीक है, उनका पूरा साथ रहा है। तो तो बहुत सारे इस तरह लोग हैं, सबका सहयोग रहा है, और सबसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, मेरी माँ से भी मैंने सीखा है, तो स्वामी निरंजनन से भी सीखा है, स्वामी मंगलेश्वर जी से भी सीखा है। एक सूफी बाबा थे जिनके पास मैं काफी जाया करता था जब मैं हरिद्वार में रहता था, वो कलियर शरीफ एक दरगाह थी उस समय, है मतलब कुरुड़की के पास, तो मैं काफी उनके पास जाया करता था। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व उनका रहा। ठीक है, सूफी बाबा के नाम से उन्हें बोलते थे, मैंने कभी नाम उनका पूछा नहीं, और बहुत जाना हुआ। तो उनका भी बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में रहे, जिन्होंने कहा इस शुरुआत में कि कदम कदम पे मिलते गए अच्छे लोग, और आगे बढ़ाते गए, मुझे धक्का देते गए, और आज आपके साथ बैठ के चर्चा कर रहा हूँ। सौभाग्य है। और आज से आप आगे, आई मीन और आगे जाइए। यू कैन, आई नो यू विल रीच रियली गुड हाइट्स, एंड यू आर गोइंग टू मेक आवर कंट्री प्राउड, and also bring in the right authentic way of meditation and yoga, and also the way of right living, spiritual living. I'm so happy, Sambodh ji, you took your time and you're here today, and you gave us so much insights as to what is the right way and what exactly it takes to reach where you are. I mean, it was an honest conversation. I'm extremely humbled and happy and also blessed that I had opportunity to bring you into this platform, Maitreya. Thank you so Thank you. much. Thank you, Thank you. Prabhu Smita. It was my pleasure. And let's work together to bring the authentic Yes. योग एंड मेडिटेशन एंड जो ऋषियों का जो एक हमारा ऋषियों ने जो हमें एक तोहफा दिया है, वो ज्ञान का, वो विज्ञान का, वो लोगों के ध्यान, वो सब हम समाज में, दुनिया में अच्छी तरह से सामने लाएं, बिना किसी स्वार्थ के। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अभी भी बहुत कुछ है जो अनछुआ है। और Correct. मेरे कुछ मित्र, आप जैसे मित्र हैं, जो पूरी तरह प्रयासरत हैं कि उस अनछुए पहलुओं को, उस ज्ञान को Yes. सामने लाने का पूरा प्रयास करें, Yes. और मिलकर हम इसको करेंगे। धन्यवाद कि आपने धन्यवाद. मुझे इस शो पे बुलाया। Thank माय you. प्लेजर।